हम्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So in last class we have seen on the concept of functional dependency, and we have also seen what is unnormalized relation and what is the relation that is in first normal form. Okay, so we will continue with that again. So we have seen that in first normal form there is a very simple condition that all the field in a relation should have atomic values. Okay, you can say that that is only single value. In other words, simple term अगर आप कहें तो that means a cell should have single value. Now we will see some more other normal forms. So let's start with second normal form. सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. यू विल नॉट मैनी टाइम डील विद दिस नॉर्मल फॉर्म. what I might want to say is that you will not find out lot of examples of this normal form, and हम कभी भी अपने डेटाबेस को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं रखते. वी go for higher normal form. That's why you might see that your textbooks have not discussed this normal form, but we will discuss this normal form. Okay, so let's talk about the first definition of second normal form, then we will see some examples. So a relation, let me write the definition for you. Relation is said to be in 2NF, शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए 2NF, sorry, okay, I will say. Okay, now I think is it visible? Okay, so a relation is said to be in second NF if number one, so if the following set of conditions need to be satisfied. आप लोग जो ना लेट ज्वाइन करने की हैबिट नहीं छोड़ेंगे, है ना? बट रियली इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. पूरा फ्लो बिगाड़ देते हो आप लोग. I don't know why you don't want to understand. A relation is said to be in second normal form if following condition matches. Then first is the relation is in first NF and second condition जो required and there is no partial function dependency in the relation. Now the partial function dependency is a kind of new thing for you. Let me define this. Okay, so a relation is said to be in second normal form if it satisfies these two conditions. First, it should be in first normal form. Then second condition is that is additionally need to be satisfied is that there should be no partial function dependency in your relation. So in order to understand this, first you have to understand what is the partial function dependency. So actually you can divide your function dependencies in two categories on the basis of if you know the key. So with the help of key you can divide the function dependency into two categories, partial and fully. Okay, so let me define these both of these terms. So FD can be called partial and full. So these two definitions are actually applicable on only on those FDs that involve keys, okay, or the attributes that are part of the key. We will define some more term.
first is prime attribute. Okay, these definitions are very important to understand further topics. And non-prime attributes. So first let me define what is prime attribute. An attribute which is part of a key. Okay, which is part of a key. So key means यहाँ पे it sometimes it may be a primary key, and sometimes we will say that key means super candidate key, sorry. Okay, so prime attribute means that attribute that is part of the key. Non prime attribute means an attribute which is not part of key. ठीक है. सो जनरली कुछ ऑथर्स डिफाइन करते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट्स मतलब दैट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी की, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी की. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फंक्शन डिपेंडेंसी और पार्शियल? लेट मी टेल यू. सो सपोज दैट एन इट रिलेशन, यू हैव ए रिलेशन आर वेयर ए बी सी डी, ओके, विद दिस स्कीमा. ये स्कीमा है आपकी, एंड यू हैव ए रिलेशन ऑन दैट. नाउ अज्यूम करिए ए बी is the key in this relation. So we are considering a relation on this schema, let's say like that R A B C D. आपको दोनों में डिफरेंस पता ही है. I think I have written this. You know the difference of both of them. So now suppose that you have the key which contains two attributes A and B. So you can call that A and B are prime attributes, because these attributes are the parts of your key, and remaining attributes, let's say C and D, ये क्या हैं आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ओके, नाउ what is the meaning of partial function dependency and full function dependency? Let me tell you. Now suppose that this relation might have this kind of set of FDs. So F is some set of function dependencies. Okay, so now assume that F is the set of all function dependencies that are satisfied by this relation, So let's say you can have these kind of FDs. AB determines C and AB determines D. Assume करें this is one example. Now we can have also another set of FDs. Assume कर रहे हैं हम. Now suppose F की जगह पे आपके पास एक एट्रीब्यूट का सेट जो इस रिलेशन पर होल्ड हो रहा है, वो सपोज ये है any instance of R, or that schema satisfies, let's say AB determines C and B determines D. Suppose this is a set of FDs that are currently satisfied by this relation R. Then you can see here there are two kind of FDs. AB determines C, and you have one FD B determines D. Now you know that AB is the key. AB आपके क्या है? This is the key. So A and B both are the prime attributes, and C and D are non-prime attributes. Okay, I think you know that. Now this kind of function dependencies, or the kind of function dependencies where left hand side have all the attributes that are in the key, or you can say that left side have complete key. Okay, so in this FD left side key है A and B. So this kind of FD where left side contains the key, complete key, is called full FD. ठीक है, full function dependency, मैं इसे शॉर्ट में full FD लिख रहा हूँ. And there may be some FDs in a relation where left side of FD contains a prime attribute only. That means not only the key, not only full key, but a subset of the key.
So here you have a subset of key, है ना. सो मे बी ए हो सकता है या बी हो सकता है, दैट मीन्स नॉट ए बी, पूरा ए बी नहीं है, एक की का सबसेट है. सो दिस काइंड ऑफ एफडी इज नाउन एज पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी. Okay, this kind of FD is known as partial FD. So now what this second normal form definition is was saying that is no partial FD. So that means जितनी भी FDs होंगी रिलेशन में आपके, so अगर कहीं पे प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है तो फुल की आ रही है एक्चुअली. सो लेफ्ट हैंड साइड आइदर यू विल हैव फुल की और सम अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, but you will not have a subset of the key in the left side. In any FD you will not have a proper subset of the key in the left side of a FD. So अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो सेट ऑफ FDs है उसमें अगर ऐसे सेट ऑफ FDs हैं, if you are saying that you are having a relation that is having this kind of scenario, that means it is having at least one partial FD, then you will say that this relation is not in second normal form. The relation is not in second normal form. What problem will arise due to second normal form, we will see. Okay, so if we assume that R having set of FDs f dash, then R is not in second normal form. But let's assume that ये FDs नहीं है, R is satisfying these FDs. The relation R is satisfying this set F. Now you can see that in the all the FDs ए बी डिटरमाइन सी एंड ए बी डिटरमाइन डी. सो अगर कहीं पे लेफ्ट साइड में कुछ भी आ रहा है तो पूरा की आ रहा है, नथिंग एल्स दैट. हाँ, ये जरूर हो सकता है सी डिटरमाइन डी. वी आर नॉट सेइंग दैट कि सी डिटरमाइन डी ऑकर नहीं हो सकता, सी डिटरमाइन डी हो सकता है. सो अगर लेफ्ट साइड में कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है तो वो अकेले प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होगा, फुल की विल बी देयर. सो इन दिस केस if your R satisfy this kind of FD set, then this relation is in second normal form. Otherwise it is not in second normal form. Okay, so I think now definition have been clear to you. If you have any question you can ask, otherwise I will move ahead with an example on this second normal form. Any query? No. चलिए तो फिर आगे चलते हैं. सो यू माइट बी रिमेंबरिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट वी वर डिस्कसिंग, इंस्ट्रक्टर्स एंड डिपार्टमेंट टेबल का कॉम्बिनेशन जो टेबल थी, कंबाइंड टेबल. वी विल कम टू दैट टेबल अगेन. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म विद एन एग्जाम्पल. सो अज्यूम कर लीजिए यू हैव द सेम टेबल, instructor underscore department, inst underscore department. This is the name of the table, suppose. So we have id, name, and then we have department name, we have salary, then we were having building. ठीक है, मैंने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया है. जनरली पहले डिपार्टमेंट नेम ऐसे था, यहाँ पे था. सो लेट्स अज्यूम ऐसे ही मान लेते हैं ऑर्डर, ठीक है. सैलरी पहले है, डिपार्टमेंट नेम बाद में, देन डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट. सो दिस वाज योर रिलेशन. नाउ व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, प्रीवियस केस में मैंने कहा कि आपकी आईडी वाज द की. ओके, सो यूजुअली व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट, जो डिफ़ॉल्ट अजम्पशन थी हमारी रिलेशन में वो थी कि एन इंस्ट्रक्टर कैन ओनली बिलोंग टू एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, है ना. नाउ लेट्स रिलैक्स दिस अजम्पशन एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू नाउ दिस रिलेशन. सो नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट एन इंस्ट्रक्टर may be associated with more than one department. So now what I am assuming कि
आई एम राइटिंग इन शॉर्ट डिपार्टमेंट. सो नाउ एक इंस्ट्रक्टर के दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल बी द की ऑफ दिस रिलेशन नाउ. क्या आप बता सकते हैं इस रिलेशन की क्या होगी. द सेम रिलेशन बट नाउ की विल चेंज. बताइए जल्दी जल्दी से. देखिए, लेट मी शो यू द डेटा in the same table. Now here you know that id of instructor is unique and instructor having only one associated department. Now assume that instructor might have let's say the Einstein is one instructor who is associated with department of physics, and let's say it is also he is also associated with department of let's say electrical engineering. He belonging to two department. Okay, थोड़ा सा पॉलिसी हमने बदल दी. सो नाउ यू विल हैव टू रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल ऑफ आइंस्टीन. सेम होगा दिस वन देन सैलरी एंड देन सैलरी तो दो नहीं मिलेंगी. दो डिपार्टमेंट से एसोसिएट होने पर सैलरी विल बी गिवन ओनली वंस. एक ही सैलरी की वैल्यू होगी. ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों डिपार्टमेंट से अलग अलग सैलरी मिलती है. डिपार्टमेंट डजंट गिव द सैलरी, actually university gives the salary. Okay, so but since Einstein is now affiliated to more than one department, so there will be two records of him. Yes or no? एक होगा जिसमें डिपार्टमेंट फिजिक्स रिफ्लेक्ट होगा. इन अनदर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट विल बी electrical engineering. So you have one more record now in this table. This ID Einstein 95,000, electrical engineering Taylor and 85,000. So now you can see that now your instructor ID is not the key. है ना. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम ऑफ आइंस्टीन नाउ, अगर आप आईडी से डिपार्टमेंट ने रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. यू विल गेट टू वैल्यूज फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जबकि आपको मालूम है जब हम कोई भी डेटा रिट्रीवल करते हैं वी शुड गेट सिंगल वैल्यू. सो नाउ जो रिलेशन हो गया आईडी और डिपार्टमेंट के बीच में जो मैपिंग थी वो कैसी हो चुकी है, वन टू मैनी, है ना. और वन टू मैनी का मतलब आईडी इज नॉट नाउ फंक्शनली डिटरमाइनिंग डिपार्टमेंट नेम. पहले रिलेशनशिप क्या थी, वन टू वन थी कि एक इंस्ट्रक्टर उसका एक ही डिपार्टमेंट था. अच्छा, वन टू वन नहीं थी, पहले क्या थी, आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम वाज दीज रिलेशन जो एसोसिएटेड थे. सो इनके बीच में मैपिंग थी कि मैनी टू वन, है ना, मैनी टू वन थी. दैट मीन्स मैनी इंस्ट्रक्टर्स कैन बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट बट no sorry, डिपार्टमेंट हैव मैनी साइड. ठीक है, लेट मी redraw it in a better way. You have ID attribute. This is not ER diagram. I am just using some simple representation. ठीक है, ये blocks मैं ऐसे ही बना रहा हूँ. This is department. Okay. So ID now one instructor can belong to more than one department. So here many and one department can have many instructions. So now mapping have become many to many actually. एक पर्सन के एक आईडी मतलब एक पर्सन, आईडी मीन्स एक पर्सन कैन बिलोंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. ओके, सो एक डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आईडी जा सकती हैं और एक आईडी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं. सो नाउ रिलेशन हैव बिकम मैनी टू मैनी. इससे पहले रिलेशनशिप कैसी थी, मैनी टू वन.
लाइक दैट मीन्स मैनी आईडी कैन बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, लेकिन एक आईडी के करस्पॉन्डिंग यू वर हैविंग ओनली वन डिपार्टमेंट. ओके, सो नाउ ये जो मैपिंग चेंज होने की वजह से, ठीक है, मैपिंग चेंज होने की वजह से नाउ दिस एफडी इज नॉट गोइंग टू होल्ड एनी मोर. ठीक है, आईडी इज नॉट गोइंग टू क्लियरली डिटरमाइन विच इज द डिपार्टमेंट नेम. So this FD is not going to hold. ID is not going to functionally determine department name. Okay, so we can represent like that. Generally this is not the standard notation. Okay, so this is just a notation for that this FD is not going to hold now because of this assumption. So now what will be the key attribute, or what are the set of function dependencies that are going to hold in this relation? So let me compute. I think आप भी निकाल सकते हैं, but let me do it for you. So आप जानते हैं ID से आप name determine कर सकते हो. So you can have a ID determines name. ठीक है, क्योंकि एक पर्सन की एक ID है तो एक ही नाम होगा यूनिवर्सिटी सिस्टम में, पेट नेम की बात नहीं कर रहे हैं. देन ऑल्सो पर्सन हैव ए सिंगल वैल्यू ऑफ सैलरी, so you can say that ID also determines salary. Okay, now ID cannot determine department name. ठीक है, ID से आप किसी की बिल्डिंग का भी नाम आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नाउ एक पर्सन के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सो मल्टीपल बिल्डिंग हो सकती है और उसी तरीके से मल्टीपल बजट्स हो सकते हैं. ओके, सो आईडी केवल अब इन दोनों ही एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाएगा. सो आईडी इज नॉट गोइंग टू वर्क एज ए की इन दिस रिलेशन. ठीक है, ये पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल दिया है, हम इसका नाम में वन अटैच कर लेते हैं, सो दैट नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट रिलेशन. नाउ लेकिन ये फंक्शन डिपेंडेंसीज में कोई चेंज नहीं आएगा. डिपार्टमेंट नेम कैन फंक्शनली डिटरमाइन. आप डिपार्टमेंट नेम से उसकी बिल्डिंग बता सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इज रनिंग ओनली इन वन बिल्डिंग. मोर देन वन बिल्डिंग अगर एजम्पशन हो जाएगी डिपार्टमेंट की, आप अगर मान लें डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रन इन मोर देन वन बिल्डिंग, देन आपकी ये एफडी होल्ड नहीं होगी. ठीक है, अभी क्यों होल्ड हो रही है? क्योंकि डिपार्टमेंट इज रनिंग इन एट मोस्ट वन बिल्डिंग. एक बिल्डिंग में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बट अभी आपके रिलेशन मैनी टू वन है. जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन है. सो डिपार्टमेंट नेम इज फंक्शनली डिटरमाइन बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट नेम इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग बजट. ओके, सो नाउ आप देख रहे हैं आईडी मिलकर के दो एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, सैलरी और नेम को, और ये दो एट्रीब्यूट्स को डिपार्टमेंट डिटरमाइन कर रहा है. नाउ सो हाउ टू फॉर्म ए की. नाउ यू विल लेट मी टेल यू कि आप की कैसे बनाएंगे एफडीज से. आपको की का मतलब क्या होता है? किसी भी रिलेशन में जो की होती है, इट फंक्शनली आइडेंटिफाइज ऑल द एट्रीब्यूट्स और ऑल द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स. सो की फंक्शनली डिटरमाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, और या कहिए कि रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके सब फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं की पर. तो इस केस में आईडी को आप की नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि आईडी पर केवल दो ही एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, नेम एंड सैलरी. सिमिलरली अकेले डिपार्टमेंट को आप की नहीं बना सकते, क्योंकि इन पर दो ही फंक्शनली एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है, वो है बिल्डिंग एंड बजट. अगर आप इसको और थोड़ा सा मैं क्लैरिटी लेकर के लिखूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नेम कॉमा सैलरी. आईडी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग नेम एंड सैलरी. सो इन दोनों से हम मिलाकर के एक एफडी बना सकते हैं, इन दोनों एफडी से. ठीक है, वी विल सी दैट एट वाई वाट रूल आई हैव मेड इट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. एंड दूसरी एफडी आपके पास है, वो है डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस बिल्डिंग कॉमा बजट. ओके, सो नाउ आपको क्या चाहिए? की जो है ना सारे एट्रीब्यूट्स को मिलकर डिटरमाइन करती है. तो अगर मैं ऐसा करूं, आईडी और डिपार्टमेंट नेम को मिला लूं, इन दोनों को मिलाकर के की बना लूं, तो आपको मालूम है कि आईडी की वजह से ये दोनों डिटरमाइन हो जाएंगे और डिपार्टमेंट से ये दोनों डिटरमाइन हो जाएंगे. सो ये दोनों मिल करके इन सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर लेंगे. नेम, सैलरी
खुद को तो डिटरमाइन करता ही है, तो उनको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिवियली डिटरमाइन करता है। हर एट्रीब्यूट अपने आप को फंक्शनली डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो आईडी और डिपार्टमेंट नेम के इधर आने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग एंड बजट, ठीक है। सो दैट मीन्स नाउ वी हैव shown that this is the key. So in this table ID and department name will work as a key, ठीक है। छोटी सी assumption मैंने चेंज की, आप देख रहे हैं की बदल चुकी है। सो दीज assumptions आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मॉडलिंग करते हैं डेटाबेस की, ER मॉडल्स बनाते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द रेगुलेशंस देयर क्लियरली, और एट्रीब्यूट्स का कनेक्शन भी आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। सो और वो मैपिंग से पता चलता है। तो दैट मीन्स you can now you might have understood कि what is the role of mappings, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स के सीमेंटिक्स, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसमें मिस्टेक कर देंगे, दैट मीन्स आवर डिजाइन माइट हैव some problems. Okay, so with this assumption, now ID and department name is the key. So now in this relation जो वन नाम से बना हुआ है मैंने, इसमें आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? ID, department name. These are the prime attributes, and all remaining these four are non-prime attributes. Now, can you see here any partial function dependency? Now आप इन सारी function dependencies को लिस्ट कर लीजिए। ID determines name, ID determines salary, department name, ये सब FDs valid FDs हैं, ध्यान रखना। All these are the valid FDs. सो जो FDs का अगर सेट बनाए तो यू विल हैव दिस सेट ID determine name, ID determine salary, then department name determines building, and department name डिटरमाइंस बजट, है ना। ये तो 4 FDs हैं जो मैंने पहले लिखी थी। बाकी की ये जो 2 FDs बनी थी, ID डिटरमाइंस नेम कॉमा सैलरी, हम कंबाइन करके इन दोनों से नई FD बना सकते हैं, वो है ID डिटरमाइंस नेम कॉमा सैलरी, एंड डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस बिल्डिंग एंड बजट, ठीक है, एंड सो ऑन। और एंड दीज FDs आर ऑल्सो देयर कि ID एंड डिपार्टमेंट नेम मिल करके, ये भी मिल करके सबको डिटरमाइन करेंगे। नेम को भी ये आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ID कॉमा डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस नेम, ID कॉमा डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस सैलरी, एंड सो ऑन. So you have a large set of FDs. Now you can clearly see that there are lot of partial FDs are there. In this relation, lot of partial FDs are there. This is one example. ID की का सब पार्ट है, डिपार्टमेंट नेम की का सबसेट है, नॉट द की. So similarly you can see this one. So now you can see that there are lot of partial FDs are available. So in this relation, this relation have has some partial FDs. Hence it is नॉट इन सेकेंड NF. ठीक है, पहले ही तो कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. so, वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सारी ऑटोमेटिक हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के. सो नाउ दिस रिलेशन इज एन एग्जाम्पल विच इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सो बिकॉज ऑफ नाउ यू हैव सीन दैट all the problems that insertion anomaly, updation anomaly, deletion anomaly and redundancies are available there. सेम रिलेशन है, मैंने कुछ चेंज नहीं है, केवल अजम्पशन चेंज करने से ना एनोमली जो ना वो चेंज होने नहीं जा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, द ऑल प्रॉब्लम इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज पार्शियल एफडीज. क्योंकि आपको मालूम है कि आईडी नेम और इनको डिटरमाइन कर रहा है.
सो नेम एंड सैलरी डिपेंड्स ऑन आईडी, नॉट ओनली द की। अकेले की पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये आईडी पर भी डिपेंड करते हैं। सिमिलरली बिल्डिंग एंड बजट सेपरेटली आर डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नेम। सो अगर गलती से कहीं भी डिपार्टमेंट नेम डिलीट होगा, अपने आप बजट और बिल्डिंग को आपको डिलीट करना पड़ता है। सिमिलरली आईडी डिलीट करोगे, नेम सैलरी डिलीट हो जाएंगे। ओके और सो दैट्स वाई ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल। आप सिंपल सेम आर्गूमेंट जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिया था, सेम आर्गूमेंट से यू कैन क्लेम दैट दिस रिलेशन इज हैविंग all three anomalies and redundancy as well. So now we need to solve this problem. So how to solve this problem? So obviously second normal form में लाने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? You have to remove the partial FDs. So in order to bring this relation in second normal form, you have to do decomposition such that all partial FDs are removed. इस तरीके से डिकम्पोज कर दीजिए कि सारी पार्शियल एफडीज रिमूव हो जाएं। सो हाउ यू विल डू दैट? ओबियसली पार्शियल एफडीज वाले एट्रीब्यूट्स को सेपरेट कर दीजिए। एक पार्शियल एफडी आपको यहाँ ऐसे दिख रही है, आईडी आपको मालूम है, दिस एफडी इज इंडिकेटिंग दैट आईडी डिटरमाइंस नेम एंड सैलरी, बाकी को डिटरमाइन नहीं करता है बिल्डिंग बजट को। सो आईडी के साथ नेम एंड सैलरी रखी है। सो दैट मीन्स नाउ यू कैन डिकम्पोज दिस रिलेशन लाइक दैट इंस्ट्रक्टर आईडी नेम सैलरी। अभी मैं इसको डिकम्पोजिशन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। एंड देन यू माइट हैव अनदर टेबल डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट इट इज ऑल दिस एफडी इज ऑटोमेटिकली इंडिकेटिंग डिपार्टमेंट केवल बिल्डिंग और बजट को डिटरमाइन करता है। सो डिपार्टमेंट के साथ बिल्डिंग बजट को रख दीजिए। सो डिपार्टमेंट नेम कॉमा बिल्डिंग एंड बजट। नाउ यू नो दैट अगर हम ऐसे ही डिकम्पोज करके छोड़ देंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू कंबाइन दीज टू टेबल्स टू जनरेट ओरिजिनल टेबल। दैट मीन्स आवर डिकम्पोजिशन विल बी लॉसी एंड वी वांट टू हैव ए लॉसलेस डिकम्पोजिशन। सो इसका आइडिया क्या होता है कि किसी भी एक कॉलम को कॉमन कर दीजिए दोनों साइड, चाहे तो यहाँ आईडी करिए कॉमन या डिपार्टमेंट नेम करिए, बट लॉजिकल इज दैट डिपार्टमेंट नेम शुड बी मेड कॉमन। ठीक है, आईडी कॉमन करने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आईडी इज नॉट ए गुड आइडिया टू मेक कॉमन। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट करते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर इज हैविंग वन डिपार्टमेंट एक्चुअली अटैच्ड। सो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। सो नाउ इन दिस टेबल आईडी 1 है, आईडी को कॉमन कर सकते हैं, यू कैन मेक इट कॉमन, नॉट अ इशू। लेकिन फिर इंस्ट्रक्टर का आईडी और डिपार्टमेंट नेम अलग अलग आएगा, दैट यू कैन ऑल्सो डू, बट आई थिंक डिपार्टमेंट नेम को कॉमन करना ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। दैट्स बिकॉज ऑफ आई एम हैविंग एक्सपीरियंस दैट डिपार्टमेंट नेम इज एक्चुअली डिफरेंट एंटिटी। सो हम एंटिटी से कनेक्शन करेंगे। सो एंड दिस एट्रीब्यूट इज गोइंग टू द की। आप आईडी भी कर सकते हैं, नो इशू, यू कैन डू इट। ओके, सो यू कैन मेक एनी एट्रीब्यूट्स की, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपका लॉसलेस बनाने के लिए दैट कॉमन एट्रीब्यूट शुड वर्क एज ए की इन एटलीस्ट वन स्मॉलर रिलेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। ओके, सो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम की हो जाएगा, यहाँ आईडी की हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द कीज नाउ इन दिस डिकम्पोज्ड रिलेशन? सेट ऑफ कीज। सो नाउ अगर इसमें एफडीज आप निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे, आपको मालूम है नाउ कि एक स्ट्रक्चर के मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सो आईडी अकेली की नहीं होगी यहाँ, इंस्ट्रक्टर कैन हैव मोर देन वन डिपार्टमेंट। सो यू नीड टू मेक आईडी देन नेम, सॉरी मैं एफडीज लिखना चाह रहा था। तो आईडी जो है नेम एंड सैलरी को डिटरमाइन करता है। स्टिल ओके, आवर नॉट प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व। आईडी और डिपार्टमेंट साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। So we have to decompose it like that. ID, department name,
एंड योर डिपार्टमेंट नेम विल वर्क एज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो हम इसको ऐसे डिकम्पोज करें तो बेटर होगा. लेट मी डू इट अगेन. आईडी, नेम, सैलरी, इसको ऐसे करिए. ठीक है, एक टेबल ये रखिए, 3 टेबल, लेट्स मेक 3 टेबल्स. ठीक है, वो जो मैं डिकम्पोजिशन करने जा रहा था उससे अपना पर्पस सॉल्व नहीं होगा. अगेन रिलेशन विल नॉट कम इन टू द डिजायर्ड फॉर्म. नाउ आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम में एक सेल टेबल अलग से बना रहा हूँ. लेट्स से दिस रिलेशन नेम्स इज इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डीपीटी. ठीक है, सो नाउ वी विल हैव 3 रिलेशन. इसमें आपका दोनों मिलकर के की का काम करेंगे. यहाँ डिपार्टमेंट नेम की होगा, यहाँ आईडी की होगा. ठीक है, सो अब जो कंबाइंड करना होगा ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कंबाइंड हो जाएगी. अब पूरी इन्फॉर्मेशन कंबाइन करना होगा, तीनों का नेचुरल जॉइन हो जाएगा. यहाँ ये की है, यहाँ ये की है, यहाँ आईडी और डिपार्टमेंट नेम जॉइंटली की है. अब आप देख सकते हैं ये रिलेशन जो डिकम्पोजिशन बनेगा ये लॉसलेस होगा. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा. अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते कि मैंने ऐसे ही क्यों डिकम्पोज किया. ओके, why I have does this kind of decomposition. So you will understand gradually कि why I have done this. ठीक है, so अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझाना था. ठीक है, डिकम्पोजिशन पर हम थोड़ा सा और बाद में फोकस करेंगे. सो नाउ यू कैन सी ऑल द एफडीज. सो इसमें फंक्शन डिपेंडेंसीज का सेट जो पहली टेबल है उसमें एफडीज का सेट मैं लिस्ट कर रहा हूँ. आईडी विल डिटरमाइन नेम कॉमा सैलरी. ठीक है, सो एक तो फंक्शन डिपेंडेंसी होगी, आईडी डिटरमाइंस नेम, आईडी डिटरमाइंस सैलरी एंड आईडी डिटरमाइंस नेम कॉमा सैलरी. सो नाउ देयर इज नो पार्शियल एफडी इन दिस रिलेशन. व्हाट अबाउट दिस? इसमें क्या है एफडी? डिपार्टमेंट नेम टू डिटरमाइन बिल्डिंग एंड बजट. सो देयर इज नो पार्शियल एफडी बिकॉज डिपार्टमेंट नेम इज द की. एंड हियर देयर इज नो पार्शियल एफडी क्योंकि दोनों ही एट्रीब्यूट्स की हैं. सो नो एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंस ईच एवरी अदर. इनमें दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे को डिटरमाइन ही नहीं करते हैं. सो देयर इज नो एफडी इन दिस सेट. ओके, सो नाउ दिस रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, देयर इज नो पार्शियल एफडी. आप देख सकते हैं क्रॉस चेक करके, देयर इज नो पार्शियल एफडी क्योंकि पार्शियल एफडी के लिए जरूरी होती है कंपोजिट की. सो आपकी की जो है 2 तरीके की होती है. यू नो दैट यू कैन हैव 2 सिंपल की एंड कंपोजिट की. ये एक और डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बुक्स में आपको शायद न मिले ज़्यादातर देखने को. सिंपल की एंड कंपोजिट की. सो देयर इज वन ऑब्जर्वेशन दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ए सिंपल की मीन्स ए की दैट इज हैविंग ओनली सिंगल एट्रीब्यूट. ठीक है, ए की. सो ये डेफिनेशन प्राइमरी की पर, कैंडिडेट की पर, सुपर की, तीनों पर लागू होती है. उनको हम फिर सिंपल की बोलते हैं. ए की विथ ओनली 1 एट्रीब्यूट. ओके, नाउ कंपोजिट की का मतलब हो गया ए की विद मोर देन 1 एट्रीब्यूट. Now whenever, so now एक relation, if you have a relation which is having a simple key, then आपको आंख मूंद करके you can tell it blindly that your relation is in second normal form. ठीक है, ऐसा क्यों है? Because when a relation is having a simple key, that means a key with single attribute, तो पार्शियल का सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि एक एट्रीब्यूट का सब डिवीजन थोड़ी होता है, फर्दर पार्ट नहीं होता है. सो व्हेन ए रिलेशन हैव ए कंपोजिट की, देन ओनली यू विल हैव चांसेस दैट देयर मे बी सम पार्शियल एफडी. सो योर रिलेशन मे नॉट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. आई एम सेइंग मे नॉट बी. ठीक है, कभी कभी वो अपने तब भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है. सो इट डिपेंड्स. सो यू हैव टू लुक इनटू ओनली दोज रिलेशंस दैट आर हैविंग कंपोजिट की. वही रिलेशंस में चांसेस हैं कि दे मे नॉट बी और माइट नॉट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको करना है. जनरली आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगी. ज़्यादातर रिलेशन
सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर सिंपल कीज हैं वो ब्लाइंडली आप कह सकते हैं दे आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कुछ नहीं करना है आपको. Okay, so now you can think of the when normalization actually in normalization the concept of key is playing very important role. मैंने पहले भी बताया था कि डेटाबेस डिजाइन में की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो नॉर्मलाइजेशन इज एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द कीज. सो इफ यू अंडरस्टैंड कीज बेटर यू विल अंडरस्टैंड नॉर्मलाइजेशन बेटर, एंड देन आप नॉर्मलाइजेशन भी फिर अच्छे से कर पाएंगे. क्यों? इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ की यू विल अंडरस्टैंड नॉर्मलाइजेशन इन ए बेटर वे, एंड देन इफ़ यू अंडरस्टैंड नॉर्मलाइजेशन इज ए बेटर वे देन यू कैन डू नॉर्मलाइजेशन इज इन ए बेटर वे, है ना. सो दिस इज द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ओके, so whenever you remove your relation, so in order to bring back your relation in second normal form you have to do decomposition. और decomposition में तरीका यही होता है कि जहाँ जहाँ पार्शियल एफडीज की सिचुएशन बन रही है, जिन एट्रीब्यूट्स की वजह से बन रही है उनको आप सेपरेट कर दीजिए. सो पार्शियल एफडी आपकी क्यों बन रही थी, अब मैं लेट मी कम बैक टू दिस डिकम्पोजिशन. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी आईडी और जो नेम थे ये दोनों कंबाइंडली की थे और दे वर डिटरमाइनिंग सम एट्रीब्यूट्स डिफरेंट जॉइंटली सेपरेटली. सो मैंने दोनों को ही अलग अलग रिलेशन में डाल दिया, आईडी को अलग रिलेशन में डाल दिया. दैट मीन्स आईडी जिनको डिटरमाइन कर रहा था वो एक साथ रख दिए. आपको मालूम आईडी वाई डिटरमाइनिंग नेम एंड सैलरी ओनली. सिमिलरली डिपार्टमेंट नेम वाज ओनली डिटरमाइनिंग द बिल्डिंग एंड बजट. सो मैंने इनको भी एक साथ एक रिलेशन में रख दिया. नाउ अब प्रॉब्लम अराइज क्या हो रही है कि ये मेरा डिकम्पोजिशन तो हो गया, बट आई विल नॉट बी एबल टू कंबाइंड द इंफॉर्मेशन यूजिंग ओनली दीज टू रिलेशन. सो डिपार्टमेंट को कॉमन करने से मेरा काम नहीं बनने वाला था. डिपार्टमेंट यहाँ वापस रख दूंगा अगर मैं इसी टेबल में जैसे मैं पहले रख रहा था. सो नाउ व्हाट प्रॉब्लम विल कम अगेन, आपकी की जो है दोनों मिलकर के बनेंगे, क्योंकि आईडी और डिपार्टमेंट नेम एक दूसरे को डिटरमाइन करते ही नहीं है. सो जॉइंटली आप की बनाएंगे, अगेन फिर से पार्शियल एफडी रह जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल एफडी मैंने फिर क्या किया, इन दोनों को सेपरेट टेबल में रखा एंड देन इन्फॉर्मेशन कंबाइन करने के लिए एक अनदर रिलेशन बना दिया, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट. यहाँ पर दोनों एट्रीब्यूट्स रख दिए. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन कंबाइन दीज इन्फॉर्मेशन. ऑल तीनों टेबल का नेचुरल ज्वाइन कर देंगे आप, तो यू विल गेट द ओरिजिनल रिलेशन. ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन ध्यान रखते समय भी आपको एफडीज पर ही ध्यान देना है. So here FDs actually guides you. Function dependencies on a relation will guide you how to do decomposition. ठीक है, और decomposition करते समय एक चीज़ और याद रखना, your decomposition should be lossless. ठीक है, that is the key. This is how you will do decomposition. और कोई rocket science नहीं, there is no another rocket science. Okay, and now थोड़ा सा you will require a bit experience. ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तभी वो एक्सपीरियंस आएगा आपके पास. सो दिस इज योर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. नाउ सो ए रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, then it doesn't mean that it will not have any kind of problem. So I'm going to give one more example to you that is in second normal form, but it will have some problems. Okay, we will discuss after a moment. So now one more thing, when we will call a database in second normal form, answer is when all the relations in a database are in second normal form, then we say that whole database is in second normal form. Okay, so second normal form is not sufficient because it can have all these anomalies that we were trying to remove. However, ये जो मैंने डिकम्पोजिशन बनाया है यहाँ, ये डिकम्पोजिशन में कोई इशू नहीं है. सो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, यू कैन क्रॉस चेक इट. एंड ये और हायर नॉर्मल फॉर्म में भी है, थर्ड और BCNF में भी है, ये BCNF में भी है. ठीक है, सो वी विल सी नाउ थर्ड नॉर्मल फॉर्म so that we will discuss some more issues that may arise. Third normal form. So a relation small r on schema capital R is said to be in 3NF if and only if following conditions
आर मेट। वो क्या है? नंबर 1, द रिलेशन इज in second NF. The relation is in second NF. Second, there is no transitive FD in the relation. ठीक है, इसको हम अदर टर्म में ऐसे भी डिफाइन करते हैं, और there is no FD among non-prime attributes. और भी डेफिनेशंस हैं, देर आर सम मोर बेटर डेफिनेशंस, आपके बुक में भी मिल जाएगी। बुक में सिंपली डेफिनेशन में कहा गया है कि लेफ्ट साइड अगर एक रिलेशन में अल्फा बीटा डिटरमाइन टाइप की फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, सपोज यू हैव इसकी रिलेशन जिस पर एफ डीज का सेट एफ है और उसमें सारी एफ डीज अल्फा डिटरमाइन बीटा टाइप की हैं, तो आपका रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर नंबर 1 ये जो अल्फा है या तो ये की है और it is a subset of the key, then beta is also subset of the key. ठीक है, सो दो तरीके की एफडी जो है ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ करती है। पहला, या तो लेफ्ट साइड में की होगी, और अगर लेफ्ट साइड में की नहीं है तो राइट साइड में एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, so these are the different definitions. So all definition says one thing only कि कोई भी ट्रांजिटिव एफडीज नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टर्म में अगर पाएँ। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव एफडीज। सो ट्रांजिटिव एफडी का मतलब होता है कि लेट्स से ए डिटरमाइन बी एंड यू हैव अनदर एफडी बी डिटरमाइन सी। सो आप जानते हैं बाय रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी एफडीज ऑल्सो सेटिस्फाई द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। वी हैव नॉट सीन द रूल्स related to certain FDs, we will see them later. So what is the meaning of transitivity? Let me see, so that so A determines B and B determines C, that implies A also determines C. So this kind of rule is known as transitive rule. ठीक है, FDs में ये भी ट्रांजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। Okay, so this kind of transitivity should not be shown by a relation. अगर एक relation transitivity show कर रहा है, that means you can say that this relation is not in second normal form. So let me give you one example to you. अच्छा, अगर आप इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट के इसी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर ट्रांजिटिव एफडी कैसे मिल रही है आपको देखने को, इसी एग्जाम्पल में देखिए। दिस आईडी नेम को डिटरमाइन करता है। सो समटाइम्स बुक एफडीज को ऐसे भी कुछ ऑथर डिनोट करते हैं। ये आईडी डिटरमाइन कर रहा है, मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एरो लगा दे रहा हूँ। आईडी नेम को डिटरमाइन कर रहा है, सैलरी को डिटरमाइन कर रहा है। डिपार्टमेंट नेम वाई डिटरमाइनिंग बिल्डिंग एंड बजट। और आपको मालूम है आईडी और डिपार्टमेंट नेम दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके किन किन एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे थे? सैलरी को, नेम को। ठीक है, ये एरो लगा रहा हूँ मैं राइट साइड के लिए डिनोट करने के लिए। ये नोटेशन आपका जो है बिपिन देसाई की बुक है उसमें मिलता है देखने को। ओके, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी? सो लेट मी शो यू। आप जानते हैं कि इस टेबल में आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम
डिटरमाइन करता है डिपार्टमेंट नेम को, एंड डिपार्टमेंट नेम किसको डिटरमाइन करता है? बिल्डिंग को। मैं एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। सो आप देख सकते हैं आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम मिल करके बिल्डिंग को भी डिटरमाइन करते हैं, है ना? ऐसे भी एफडीज बना सकते हो। तो आप देख रहे हो, नो 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 नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर एग्जांपल। डिपार्टमेंट नेम, अच्छा ये ठीक है ना, डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन करता है बिल्डिंग को, ये तो ठीक है। सो इन दोनों में आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका ए, ये बी, और दिस इज बी, दिस इज सी। आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइंस डिपार्टमेंट नेम एंड department name determines building. So by this transitive rule, id comma department name determines building. So this is the example that is showing the transitive dependency. So this relation is not in third normal form. Okay, this relation is not in third normal form because it is showing transitive dependency. Okay, so हम तो जब पहले से we have seen that this example is not also in second normal form actually, but still we will have a good example. So this example is from Bipin Desai. So let's make the name of this relation course underscore instructor. So there is a relation professor course, and course is running some in some room number and room capacity and enrollment limit. Okay, so now we can have different assumptions on this relation. So let me assume that कि दिस इज़ द की, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस इज़ द की। सो ये दोनों मिल करके बोथ ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स जॉइंटली डिटरमाइंस रूम नंबर. सो द प्रोफेसर, सम प्रोफेसर इज कोर्स टीचिंग सम कोर्स एक्चुअली विच इज रनिंग इन सम कोर्स रूम नंबर. सो एक ही रूम नंबर यूनिक है कोर्स के लिए. सो सपोज आई एम टीचिंग ए कोर्स, सो आई हैव बीन अलोकेटेड सम रूम नंबर, लेट्स से R28. So a course is assigned, each course is assigned a room number which is unique, ठीक है, कोर्स के लिए, कोर्स और टीचर के पेयर के लिए. सो प्रोफेसर और कोर्स फंक्शनली डिटरमाइन रूम नंबर, एंड देन रूम नंबर इज ऑल्सो, नाउ रूम नंबर जो है आपको मालूम है एवरी रूम हैव ए फिक्स कैपेसिटी. सो रूम नंबर से आपको रूम कैपेसिटी पता चल जाती है. दैट मीन्स रूम नंबर फंक्शनली डिटरमाइंस रूम कैपेसिटी, एंड दिस कोर्स ऑल्सो डिटरमाइंस एनरोलमेंट लिमिट. आप चाहें तो एनरोलमेंट लिमिट को छोड़ सकते हैं, ठीक है. नाउ आप अज्यूम कर सकते हैं कि रूम नंबर ऑल्सो डिटरमाइंस एनरोलमेंट लिमिट, क्योंकि रूम पर भी डिपेंड करता है कि कितने एनरोलमेंट कोर्स में अलाउ होंगे. सो सपोज आई एम allocated a room number, or some room have been allocated for my course that I am going to teach in next, let's say in next semester, and that room having maximum capacity of 30. So that means I will only allow maximum number 30 enrollment, है ना. So you can say that room number actually also determines enrollment limit, ठीक है. So now what about this relation? Is this relation is in second normal form? Now what I am assuming that professor and course are the jointly is the key. क्योंकि आपको मालूम है कि जो if I am teaching a course, so I can teach multiple courses, है ना, and course can be taught by jointly also. So without professor course you will not be able to determine anything. So professor or course are functionally determining room number. So these are the, let me list the FDs here. Professor comma course determines
रूम नंबर, सब काम की एफडीज हैं वो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड रूम नंबर डिटरमाइन room capacity and room number may also determine enrollment limit. ठीक है। Now can you see here a transitive dependency? Obviously yes. कोर्स और प्रोफेसर मिलकर के रूम नंबर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अकेले प्रोफेसर से रूम नंबर नहीं डिटरमाइन कर सकते, बिकॉज आई मे बी टीचिंग इन मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल रूम नंबर्स, मल्टीपल रूम्स। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक ही रूम अलोकेटेड है। सो यू कैन नॉट से दैट के पर्टिकुलर प्रोफेसर, मैंने पूछा व्हाट इज़ द रूम नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेसर, लेट्स से Einstein. Okay. Now you will not be able to tell me the room number because Einstein may have been allocated more than 2 rooms because he is teaching more than 2 courses. So आप एक वैल्यू नहीं बता पाएंगे, दैट मीन्स प्रोफेसर कैन नॉट अलोन डिटरमाइन रूम नंबर। सिमिलरली एक कोर्स को मल्टीपल रूम भी अलोकेट हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। सो आप अकेले कोर्स से रूम नंबर नहीं बता सकते कि इस कोर्स का क्या रूम नंबर है, और दैट कोर्स कैन मे बी टॉट बाय मल्टीपल टीचर्स in different rooms. So I am assuming that professor and course jointly determines room number, क्योंकि मुझे एक कोर्स मिला हुआ है, let's say I am teaching DVMS in room number 28. So अगर आपको DVMS की इंक्वायरी करना है कोर्स की, एंड में हो सकता है दूसरा उसका जो कोर्स है किसी और के साथ किसी और रूम में, या DVMS को कोई और टीचर भी किसी और रूम में भी पढ़ा रहा होगा, ओके। सो अकेले आप DVMS के रूम नंबर पूछेंगे तो हो सकता है देयर आर 2 टीचर्स दैट आर टीचिंग DVMS. लेट्स से आई एम टीचिंग DVMS in room number 28 and Dr. Jainath is teaching room DVMS in let's say room number 36. Okay, so अकेले attribute से डिटरमाइन नहीं होगा रूम नंबर, सो यू नीड टू हैव द कॉम्बिनेशन टू डिटरमाइन रूम नंबर, ओके। दिस इज जस्ट अजम्पशन, आप चाहें अजम्पशन चेंज कर सकते हैं, की बदल जाएगी आपकी। सो जनरली the what attributes or what set of attributes will behave as a key, it depends on what you are assuming, what is the underlying assumption. Now you can see that here clearly there is a transitive dependency, professor, course, room number, and room number determines room capacity. So आप इससे निकाल सकते हैं कि professor, course determines room capacity. Let me show you. Professor, course determines room number and room number determines room capacity. So this implies that professor, course determines room capacity. So this is an example of transitive FD. So this is an example of transitive FD, है ना। So transitive FD is there, so this relation is not in 3NF. So the given relation is not in 3NF. Now you can see that this relation is not in 3NF. So now question आ जाता है क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसकी वजह से। तो आंसर इज यस, यू कैन हैव ऑल द प्रॉब्लम्स देयर। कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए इसी रूम में एक और कोई कोर्स और पढ़ाता है, some teaching also, some other teacher is also teaching some other course. Let's say Dr. Prabhat Ranjan is also teaching a room number 28, the course Big Data. So you will write that professor name Dr. Prabhat Ranjan and course is Big Data and room number is 28, room capacity let's say is 40 and enrollment limit is also 40.
सो आप देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी रिपीट हुई बिकॉज आई एम टीचिंग इन द सेम रूम नंबर. सो रूम की कैपेसिटी और एनरोलमेंट लिमिट बोथ आर बीइंग रिपीटेड. बोथ इन्फॉर्मेशन आर बीइंग रिपीटेड. व्हाई? बिकॉज देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दीज टू इन्फॉर्मेशन. जैसे डिपार्टमेंट रिपीट हो रहा था उस टाइम पे, और सो रेडंडेंसी इज देयर. जहाँ जहाँ मैं इस रूम में जितने भी कोर्स चलेंगे उतनी बार उसकी रूम कैपेसिटी और रूम लिमिट यहाँ पर दिखाई देगी आपको. यू आर गोइंग टू रिपीट दैट. सो दिस रूम इज being used for teaching 7 courses. 7 time room capacity and enrollment limit will be repeated. So redundancy is there. What about other anomalies? Insertion anomaly है कि नहीं है? Obviously insertion anomaly है because we are not maintaining information about room somewhere else. So रूम नंबर और रूम कैपेसिटी हम यहीं पर मेंटेन कर रहे हैं. एज्यूम करिए ओनली वन रूम इन रूम नंबर 28 ओनली वन कोर्स वाज रनिंग एंड दैट कोर्स हैज बीन क्लोज्ड. सो रूम नंबर 28 में कोई भी कोर्स रन नहीं कर रहा है तो उस रूम की कैपेसिटी यहाँ आएगी नहीं. बिकॉज इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको क्या जरूरी है कि कोई एक प्रोफेसर हो और वो कोर्स पढ़ा रहा हो. दैट मीन्स कोर्स और प्रोफेसर का नाम आपको चाहिए क्योंकि दीज आर द कीज. So you will not be able to insert a record of some room numbers जिनमें कोई रूम क्लास नहीं चल रही हो. लेट्स से रूम नंबर 38 है, देयर इज़ नो क्लास बीइंग रन. तो आप उस रूम की कैपेसिटी और एनरोलमेंट लिमिट यहाँ नहीं लिख पाएंगे इस टेबल में क्योंकि आपको कोर्स और प्रोफेसर की वैल्यू चाहिए. यू कैन नॉट लीव देम ब्लैंक बट यू कैन नॉट मेक देम नल बिकॉज दीज एट्रीब्यूट्स आर पार्ट ऑफ की. सो इंसर्शन अनोमली है. सिमिलरली डिलीशन अनोमली भी होगी. सपोज दैट आपने एक कोर्स चल रहा था रूम नंबर 39 में, एक ही कोर्स चल रहा था उस रूम में और आपने वो कोर्स बंद कर दिया. सो दैट रिकॉर्ड नीड टू बी डिलीटेड. सो रूम नंबर डिलीट हो जाए कोई बात नहीं है, रूम कैपेसिटी क्यों डिलीट हो रही है एंड वो एक ही जगह मेंटेन थी, दैट यू हैव लॉस्ट दैट इन्फॉर्मेशन. सो डिलीशन एनोमली है. सिमिलरली अपडेशन एनोमली विल ऑल्सो प्रेजेंट. सो ऑल एनोमलीज आर प्रेजेंट जिनको हमने हटाने के लिए रिलेशन को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाए थे. So this relation is in second normal form. This is your homework. You need to verify that this relation is in second NF or not. ठीक है? So this relation is in 3NF, not in 3NF. So in next class we will see that how we will convert this relation in 3NF. So let's close here. If you have any query, you can ask. और एक होमवर्क भी आपके लिए, आपने डिकम्पोजिशन अभी देख लिया है. ट्राई टू डिकम्पोज दिस रिलेशन सो दैट दिस रिलेशन गोज इनटू 3NF. सो लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट. आदित्य स्वरूप, आदित्य स्वरूप प्रेजेंट है. आकाश कुमार, अंजलि सिंह, अंकित कुमार, अंकिता राज, अंकिता प्रेजेंट थी शायद, अंशुमन कुमार, अंशिका चंद्रा, अर्जुन राज, अर्जुन राज, आशीष रंजन, अविनाश राज, अविनाश रंजन देव, बबली विमल, देवांशु कुमार, दिव्य प्रकाश, फयाज अहमद, गौतम कुमार, गुड़िया कुमारी, हिमांशु कुमार, कमलकांत प्रकाश, कौशिकी कुमारी, कौशिकी कुमारी, अच्छा ठीक है, मनीष कुमार गुप्ता, मोहम्मद मुदस्सिर आलम,
मोहम्मद रयान, रयान, नारायण सरन, नारायण सरन, पीयूष कुमार, पीयूष कुमार प्रेजेंट था पीयूष, हाँ ओके। राजू कुमार, रिंकी कुमारी, रिंकी कुमारी, आई डोंट नो, रोशन कुमार, सत्यम तिवारी, शालिनी कुमारी, सौरभ कुमार, अनिकेत कुमार, अनिमेश, ममता कुमारी, पार्थमणि, पुष्प सौरभ, ऋचा शर्मा, सिद्धेश्वर, सुब्रत, सुमित कुमार, अच्छा ठीक है, वत्सला, ओके। अच्छा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो उनकी एब्सेंट लगी हुई है मेरे हिसाब से। रिंकी कुमारी, अच्छा ठीक है, रिंकी नहीं है। नारायण सरन, मोहम्मद रयान, गौतम कुमार प्रेजेंट है, अच्छा ठीक, लगा दिया है। अविनाश रंजन देव, अर्जुन राज, ओके देन। अगर किसी की अटेंडेंस छूटी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बाद में। ओके देन बाय। तो आप ये जो मैंने होमवर्क दिया है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, कंप्लीट इट। ओके बाय।